یہ واحد خالص عربی ملک ہے جو اسرائیل کا لنگوٹیا یار ہے اور اسی سے بے حد پیسہ کھا رہا ہے۔ یہاں آج سے تقریباً 9000 سال پرانا شہر بھی آباد ہے جسے پوری دنیا پیٹرا کے نام سے جانتی ہے۔ اس ملک میں کیا کچھ نہیں، حسن تو اس ملک میں اتنا ہے کہ دیکھتے دیکھتے تمہارا جی کبھی نہیں بھرے گا، چاہے وہ زمینی مناظر کا حسن ہو یا یہاں کی لڑکیوں کا۔ یہاں پر عثمانی، رومن، عباسی سے لے کر ایوبیوں تک نے حکومت کی، اور دبئی سے پہلے اس ملک کے دارالحکومت عمان کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر مانا جاتا تھا۔ جی ہاں میری جان، میری جند، آج بات ہوگی جارڈن کی۔ وہی ملک جسے دنیا بھر میں جارڈن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس ملک کا حقیقی اور سرکاری نام ہاشمی مملکت اردن ہے، اور یہ نام اسے اس لیے ملا کیونکہ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چمکتا ہوا شاہکار ہے۔ ایک ملک عمان ہے جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ ایک شہر عمان ہے جو اردن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ بہت سے لوگ اس شہر کا نام سنتے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بات ملک کی ہو رہی ہے یا شہر کی، تو اتنا جان لیجئے کہ ملک کا نام عمان ہے اور دارالحکومت کا نام عمان ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح اردن بھی قدیم تہذیبوں اور زندگی کے ناقابل فراموش آثار رکھتا ہے۔ اردن کے ایک گاؤں سے 8400 قبل مسیح کے آثار بھی دریافت ہو چکے ہیں، یعنی جب دنیا ابھی غاروں میں رہتی تھی تب یہاں لوگ منظم زندگی گزار رہے تھے۔ قدیم زمانے میں اردن میں ایک تہذیب بہت مشہور تھی جسے تاریخ نے نبطی تہذیب کے نام سے یاد رکھا ہے، اور یہاں رہنے والوں کو نبطی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ سرخ گلابی پتھروں کو تراش تراش کر ایسے خوبصورت گھر اور شہر بنایا کرتے تھے کہ آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے اردن کے پہاڑوں میں تراشا گیا یہ شہر آج بھی پیٹرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ گلابی شہر جو اب نئے 7 عجائب دنیا میں شامل ہے۔ قدیم دور میں مصری فرعونوں نے اس خطے پر قبضہ کیا اور یہ مصر اور روم کی تجارت کا اہم راستہ رہا۔ بعد میں یکے بعد دیگرے آشوری، بابلی اور پھر ایرانی ہخامنشی سلطنتیں یہاں قائم رہیں۔ سکندر اعظم نے ہخامنشیوں کو شکست دے کر یونانی حکومت قائم کی، اور سکندر کے بعد کچھ عرصہ اس کے جانشین حکمران رہے۔ پھر رومی آئے اور اردن، مصر اور شام کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ رومیوں کے بعد ساسانی اور پھر بازنطینی دور آیا۔ 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمان فوجوں نے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اسے بلاد الشام کا صوبہ بنا دیا۔ اس کے بعد اموی، عباسی، فاطمی، حمدانی، سلجوقی ادوار آئے، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد ایوبی حکومت قائم ہوئی جسے بعد میں مملوکوں نے سنبھالا۔ 1516 میں اردن عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا اور صدیوں تک اسی کے زیر اثر رہا۔ عثمانیوں کے بعد برطانوی اور فرانسیسی قبضہ ہوا۔ 1921 میں برطانیہ نے امارت شرقیہ اردن قائم کی جو 1946 میں آزاد ریاست بنی۔ 1951 میں اسے ہاشمی مملکت اردن کا نام دیا گیا، اور 1952 کے آئین میں آئینی بادشاہت قائم ہوئی۔ آزادی کے بعد شاہ عبداللہ اول پہلے بادشاہ بنے، ان کے بعد شاہ طلال، اور پھر 1953 میں جوانی پوری ہونے پر شاہ حسین نے تخت سنبھالا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ ان کے انتقال کے بعد 1999 میں شاہ عبداللہ دوم بادشاہ بنے اور آج تک منصب پر فائز ہیں۔ دوستو، آزادی کے بعد جو سرحدیں طے ہوئیں ان کے مطابق اردن کا کل رقبہ 89,342 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے آزاد ممالک میں 110واں اور ایشیائی ممالک میں 32واں نمبر ہے۔ آزادی کے ابتدائی برسوں میں اردن اور اسرائیل کے تعلقات انتہائی تلخ رہے، پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے اور آخرکار دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجرین جن کی جانوں کو فلسطین میں خطرہ تھا اردن آ کر آباد ہوئے، اور بہت سے کو اردن نے مکمل شہریت بھی دے دی۔ البتہ حالیہ برسوں میں کچھ پالیسیاں سخت ضرور کی گئی ہیں۔ اردن میں اسرائیل مخالف بڑے مظاہروں کی عام طور پر اجازت نہیں دی جاتی، اور میڈیا میں بھی اسرائیل مخالف مواد پر کافی پابندی رہتی ہے۔ اسرائیل علاقائی ممالک کو اپنا حلیف بنانے کے لیے بھرپور فنڈنگ کرتا ہے، اور اس فہرست میں اردن کا نام بہت بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ البتہ آج بھی اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کچھ متنازع علاقے موجود ہیں جن پر تینوں ملک اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ اردن کی موجودہ آبادی تقریباً 11.3 ملین ہے 2025 کے تخمینے کے مطابق۔ سرکاری شمار میں کچھ فلسطینی مہاجرین شامل نہیں کیے جاتے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں تقریباً 87واں نمبر ہے۔ جغرافیائی محل وقوع کی بات کریں تو مشرق اور جنوب میں سعودی عرب، مغرب میں فلسطین اور اسرائیل، شمال مشرق میں عراق، شمال میں شام،
यानी सऊदी अरब ने जुनूब और मशरिक से उर्दन को मुकम्मल घेर रखा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। दारुल हुकूमत अम्मान उर्दन का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। 7000 क़िबले मसीह में यहाँ इंसानी बस्ती आबाद थी। आज का अम्मान तकरीबन 1680 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और मेट्रो एरिया की आबादी 40 लाख से भी ज्यादा है। ताहम शिमाल मगरबी हिस्से और मगरब की जानिब यानी इसराइल और फ़लस्तीन की सरहद के करीब वादी उर्दन का इलाका एक ऐसा सरसब्ज जन्नत का टुकड़ा है जो पूरी तरह जरखेज है। यहीं गंदम की सुनहरी खेतों, जैतून के फलदार दरख्तों, अंगूर की मीठी बेलों और ताज़ा सब्जियों की काश्तकारी होती है। कुवैती दीनार, बहरेनी दीनार और ओमानी रियाल के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी उर्दुनी दीनार को ही माना जाता है। ये वो करेंसी है जो आलमी मार्केटों में अपनी ताकत से सुरखरू है। आज की शरह तबादला के मुताबिक एक उर्दुनी दीनार तकरीबन 396 पाकिस्तानी रुपए और 127 भारतीय रुपए के बराबर है। ये वो कदर है जो उर्दन की माशी इस्तेहकाम की गवाही देती है। भले ये दुनिया की चौथी मजबूत करेंसी रखता हो, मगर माशी मसाइल की वजह से गुर्बत की शरह तकरीबन 16% और बेरोजगारी की शरह 21.3% के दरमियान रहती है 2024 से 2025 के आदाद के मुताबिक। ये आदाद-ओ-शुमार उर्दन की जिद्दोजहद की कहानी सुनाते हैं, जहां ताकतवर करेंसी के बावजूद चैलेंजेस सर उठाए खड़े हैं। मुल्की आमदनी का तकरीबन 4% ज़राअत से, 30% सनत से और 66% सरकारी और निजी खिदमात के शोबे से आता है। ये वो तवाज़ुन है जो उर्दन की मईशत को चलाता है। कुदरती गैस और तेल की शदीद कमी है, इसलिए ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर दरामद की जाती हैं, जो उर्दन की एनर्जी की कमज़ोरी को उजागर करती है, मगर इसे मजीद मेहनती बनाती है। लड़कियां खास तौर पर अम्मान, जरका और इरबिद जैसी बड़ी शहरों में रहने वाली अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉडर्न, फैशनेबल और खूबसूरत समझी जाती हैं। वो खुले बाल, बेहतरीन मेकअप, जीन्स टॉप, शॉर्ट ड्रेसेस, हाई हील्स और ब्रांडेड बैग्स के साथ गलियों, कैफ़े और मॉल्स में नजर आती हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट पर बेहद एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत हैं। डेटिंग के मामले में शहरी इलाकों की जदीद सोच वाली लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं। कैफ़े, सिनेमा और प्राइवेट पार्टियों में मिलती जुलती हैं। कुछ तो किस या हग तक भी जाती हैं। एक वक्त था जब उर्दन सयाहत के लिहाज से अरब दुनिया का सबसे बड़ा मरकज था। लाखों की तादाद में सयाह आते थे। इलाकाई तनाज़ात और 2010 से 2016 के मुश्किल दौर में सयाहत तकरीबन 70% तक गिर गई, मगर 2017 से दोबारा तेजी से बहाल हुई। 2024 में तकरीबन 35 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सयाह आए और 2025 से 2026 में ये तादाद 67 लाख तक पहुंचने की तवक्को है। ये वो वापसी है जो उर्दन की खूबसूरती और इस्तकामत की फतह है। उर्दन दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पानी की इंतहाई शदीद किल्लत है। जंगलात और लकड़ी की पैदावार भी ना होने के बराबर है। अलबत्ता कुदरती वसाइल में फॉस्फेट, पोटैश, यूरेनियम और दीगर कीमती मादनियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। फॉस्फेट की पैदावार के लिहाज से उर्दन दुनिया के टॉप 6 ममालिक में शामिल है। ये वो खजाना है जो सहरा की रेत के नीचे छुपा बैठा है। उर्दन में 8000 किलोमीटर से ज़ायद पुख्ता सड़कों का जाल बिछा हुआ है। नेशनल रेलवे सिस्टम का मंसूबा मंजूर हो चुका है जो अम्मान, अरबद, जरका और अकबा को जोड़ेगा। अकबा मुल्क की वाहिद बंदरगाह है, जबकि 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं, कोइन अलिया, किंग हुसैन और अकबा। ये वो बुनियादी ढांचा है जो उर्दन को दुनिया से जोड़ता है। वक्त के लिहाज से उर्दन पाकिस्तान से 2 घंटे गर्मियों में और 3 घंटे सर्दियों में पीछे रहता है। फासला तकरीबन 3170 किलोमीटर है। ये वो फासला है जो दोस्ती की याद दिलाता है। पाकिस्तानियों को वीज़ा पहले लेना पड़ता है। इस्लामाबाद में उर्दन का सफारत खाना मौजूद है, जबकि भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। ये वो आसानियां हैं जो सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं। तकरीबन 93% आबादी मुसलमान है, जिनमें अक्सरियत सुन्नी है। शिया बरादरी ज़्यादातर इराक और शाम से मुंतकिल होकर आई है। ये वो ईमान की रंग बरंगी दुनिया है जो उर्दन को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। 5% ईसाई आबादी है जो सदियों से यहाँ मुकीम है। अलबत्ता आज़ादी के बाद से कुछ ईसाई ख़ानदान अमरीका, कनाडा और यूरोप हिजरत कर गए। ये वो तारीखी जड़ें हैं जो उर्दन की सकाफत को गहरा बनाती हैं। 2% के करीब दरोज़ और बहाई बरादरी भी मौजूद है। ये छोटी कम्युनिटीज़ उर्दन की तनव्वो की शानदार मिसाल हैं। अरबी मुल्क की सरकारी और कौमी ज़बान है। अंग्रेज़ी को सरकारी दर्जा न होने के बावजूद कारोबार, बैंकिंग, तालीम और सयाहत में बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है।
दीगर ज़बानें जैसे चीचन, आर्मेनियाई, सरकसी, तुर्की और कुछ यूरोपीय ज़बानें भी छोटी बरादरियों में बोली जाती हैं। ये वो लिसानी हमाहंगी है जो उर्दन को एक आलमी गांव बनाती है। मुल्क 12 सूबों यानी गवर्नियों में तकसीम है। हर सूबे का हुक्मरान गवर्नर यानी मुहाफिज कहलाता है, जिसकी तकर्रुरी खुद बादशाह या हुकूमत करती है। अम्मान शहर के अलावा जरिश, अरबद, अज़रक़ा, मादबा, अलकरक और उक़बा जैसे शहर अपनी तारीख और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। फुटबॉल यहाँ खून में दौड़ता है, सबसे ज़्यादा देखा, खेला और पसंद किया जाने वाला खेल है और फ़ख्र से उर्दन का कौमी खेल कहलाता है। फुटबॉल के बाद दूसरे नंबर पर क्रिकेट का जुनून छाया हुआ है। फिर साइकिलिंग, बास्केटबॉल और स्केटबोर्डिंग भी नौजवानों के दिल धड़काते हैं। इंसानों की औसत उम्र यहाँ 78.1 साल तक पहुँच चुकी है और तालीम की शरह 98.4% से भी ऊपर है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा और बाशऊर है। उर्दन अरब दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जिन्होंने इजराइल के साथ खुले आम सिफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, और जब भी इजराइल फलस्तीन के दरमियान सुलह की बात होती है तो सालिस के तौर पर सबसे आगे उर्दन ही खड़ा होता है। बहार में सिर्फ वादी रम के सुर्ख सहरा में खुलने वाला सियाह गुलाब यानी ब्लैक आयर्स दुनिया का नायाब तरीन फूल है और उर्दन का कौमी फूल है। साइनाई रोज फिंच यानी खूबसूरत गुलाबी चिड़िया कौमी परिंदा है, और अरबी और किक्स यानी रेगिस्तानी सफेद हिरननुमा खूबसूरत जानवर कौमी जानवर का एजाज रखता है। वो कदीम पेट्रा सिटी जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, यूनेस्को ने उसे दुनिया के नए 7 अजायब में शामिल किया है। ये गुलाबी पत्थरों का शहर है जिसे शहर गुलाब भी कहते हैं, और जो सयाह भी उर्दन आता है वो सबसे ज्यादा वक्त यहीं गुजारता है, जैसे जादू के शहर में खो जाता है। बहरे मुर्दार के साथ उर्दन की सरहद तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी है। अगर ये समंदर ना होता तो उर्दन को भी लैंड लॉक्ड यानी जमीनी मुल्क कहा जाता। उर्दन के बड़े दरिया 4 हैं, दरियाए उर्दन, यरमूक, ज़रक़ा और वादी अल मुजीब, जबकि बरहाई जैसे कई छोटे दरिया भी बहते हैं जो बगैर ज्यादा फायदा दिए सीधे बहरे मुर्दार में गिर जाते हैं। जैतून का दरख्त यहाँ सबसे ज्यादा नजर आता है, हर तरफ फैला हुआ है, मगर कौमी दरख्त का ताज माउंट टेबर बलोत यानी माउंट टेबर ओक के सर सजा है। माउंट नीबो वो मुकद्दस पहाड़ है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी सांस ली। यही वो सरजमीन है जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सब्र की अजीम आजमाइश से गुजरा था। और आखिर में सबसे प्यारी बात, उर्दुनियों को अरब की सबसे मेहमान नवाज कौम माना जाता है। जहां जाओ अहलन व सहलन की आवाजें गूंजती रहती हैं। तो दोस्तों, बस ये थी आज की हमारी छोटी सी मगर प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री। कैसी लगी तुम्हें? दिल से बताओ यार। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या ख्याल है, कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारों।